Hello everyone. So, we are live. Let me check. Okay. I hope you are able to see me. I'm audible, right? Great. Okay. Hello everyone. Welcome to Rewarding Health podcast. And today we are diving into a very, very crucial topic, bone health. So, I hope all of you are ready. बोन हेल्थ जो काफी 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 important टॉपिक है. And to guide us through this important conversation, we have a renowned orthopedic doctor, from orthopedic surgeon actually from AIMS Rishikesh. ठीक है, Dr. Tushar. And he's originally from Delhi, but definitely Dr. Tushar as a doctor to serve कर ही रहे हैं, but also he's actively creating health awareness through his social media handles, social media platform. And so I'm very, very excited. Hi, I cannot hear you right now. You're not able to hear me? Yeah, now it's fine. Yeah. So hi, Yeah, hi. Thank you welcome. for the nice introduction. And I'm really glad that I'm here and I've joined your channel. And it's a great opportunity to spread further awareness that both of us have been trying independently as of now. So Absolutely. I think you have said everything about me, and I am very thankful to you for the nice introduction. So let's dive into the topic before any further delay. Yeah, sure. So definitely, I'm very, very glad to host this important topic today. And yeah, doctor. So starting, basic bone health basic questions से start करते हैं. And this conversation, this podcast, let's use both Hindi and English so that all of our audience can understand. Absolutely. हाँ, सो पहले जो बेसिक क्वेश्चंस मैं पूछने वाली थी, तो एज अ डॉक्टर जो मोस्ट कॉमन बोन रिलेटेड कंडीशंस आपको मिलते हैं, यू कम अक्रॉस, सो कैन वी टॉक अबाउट दैट फर्स्ट? Yes, sure. So basically, before dwelling into these situations, I would like to tell कि जैसे सबको awareness है कि there is a digestive system, there is a cardiovascular system, there is a nervous system. Similarly, skeletal system, bone and joint भी एक system की तरह treat किया जाना चाहिए. And यस. all the people should be so aware that their bone and joint health is equally important, if not more important than the other systems. बिकॉज आपके सारे सिस्टम्स ठीक है लेकिन आपके बोन एंड जॉइंट्स ठीक नहीं है, then mostly you are confined to your bed, and that spoils your life. All the hard work that you have done throughout your life gets spoiled at one instance अगर आप बेड पे आ जाएं because of your bone and joint health. So या. bone and joint health is very important. It's an integral part of the growth of the child. जब यंग एज में है आप कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं तो आपके लिए बोन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है. और जब आप ओल्ड एज में है, व्हेन यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट दीज डेज, यू हैव टू बी मैनेजिंग एवरीथिंग ऑन योर ओन, then bone health becomes very important. So the most common conditions that I come across as an orthopedic surgeon dwelling with all the adult population primarily these days, very common is vitamin D deficiency, then Absolutely. osteoporosis, and then the development of arthritis, which earlier used to be only in the old age. But या. as of now, I see a lot of patients in my OPD who come to me जो 30 years के हैं, 40 years के हैं. They are working professionals. They are just not you're having a very sedentary lifestyle. And ever since COVID happened, a lot of people have been working from home, and that is how they have been managing. So that's why the incidence of all these entities has increased even more. Okay. Yeah. Same here. When we deal with our weight loss clients also at 20, 30 years, they are getting this kind of issues. बट हम ये जानना चाहते हैं, बहुत टाइम डॉक्टर दे इग्नोर, जैसे कि एक नी पेन है या इट डजंट सडनली, ये तो ऐसा नहीं होता होगा कि ऑस्टियोपोरोसिस हो गया या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया. डेफिनेटली बॉडी माइट हैव गिवन सम सिम्टम्स, है ना, जो शायद पेन हो, सम कॉमन थिंग जो पीपल इग्नोर, कीप ऑन इग्नोरिंग, राइट? सो आप हमें ये बताइए सबसे पहले व्हाट सिम्टम्स हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि इट इज समथिंग रिलेटेड टू माय बोन, व्हाटएवर एज इट इज. सो एब्सोल्युटली ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि जो भी हमारी बॉडी में हमारी डाइट से रिलेटेड डेफिशिएंसीज होती हैं वो एक्यूटली नहीं डेवलप करती है. ऐसा नहीं होगा आपने आज कोई चीज़ खानी बंद करी और उसका इफेक्ट तुरंत आपको मिल जाएगा. या. आप
फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड अगर आप अपने डाइट को निग्लेक्ट करेंगे, अगर आप अपनी फिजिकल हेल्थ को निग्लेक्ट करेंगे, देन मे बी यू विल लैंड अप with some of these orthopedic conditions. So what happens is, what I have observed in my practice, बहुत Yeah. सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको स्टार्टिंग बहुत वेग सिम्टम से होती है, सच एज लेथार्जी। बोलते हैं कि Mhm. हम काम करने जाते हैं और 1 घंटे बाद ही हमें थकान महसूस होने लग जाती है, और जनरलाइज बॉडीली पेन्स। वो हमें बताते हैं कि हम काम तो अपना कर पाते हैं, वी आर एबल टू कैरी आउट आवर एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, लेकिन हमें पूरा टाइम पेन होता है। Sometimes we have pain in the shoulders, sometimes we are having pain in the knees, sometimes we are having pain in the hips. तो ये Mhm. बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही थोड़ा ओल्ड एज पॉपुलेशन में हम लोग आते हैं, देन वी रियलाइज दैट अ लॉट ऑफ पेशेंट्स कम टू अस सेइंग कि डॉक्टर साहब हमें ना कमर दर्द हो रहा है और 4-5 साल से कमर दर्द है। Yeah. तो ये वो छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं जो एक डेली बेसिस पे लोग ट्राई करते हैं रिजॉल्व करने का, एक पेन किलर खा के या 2-4 दिन पेन किलर खाकर। बट ये स्टार्टिंग सिम्टम्स होते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर बोन एंड जॉइंट हेल्थ। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट वन शुड कीप इन माइंड। ओके, दैट्स ग्रेट। क्योंकि बहुत टाइम हमें लगता है कि इट इज जस्ट बोन पेन, तो ही बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट एक्चुअली जो आपने बताया कि मे बी लेथर्जी कैन बी द फर्स्ट साइन, मे बी मसल पेन जो बोन्स की वजह से हो रहा है, दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन, राइट? सो इसका मतलब जो आपने बताया एब्सोल्युटली, पहले, या फिर पहले मे बी 50-60 ईयर्स में जो कंडीशंस आपको दिखते थे, अब वो अर्ली एजेस में दिख रहे हैं, लाइक 20-30s में आपको भी। डेफिनेटली डेफिनेटली। So let's come to now bone health and lifestyle then, bone health कैसा affect हो रहा है lifestyle से लेके, क्योंकि जिस आपने जो बताया उससे इतना तो पता चला कि it is compromised, right? 2 generations back जैसा हमारा नानी दादी उनका जैसा bone health था, वो अब compromise हो चुका है, अब वो चीज early ages में ही आ रहा है। तो क्या 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 चीज है जो लाइफस्टाइल के वजह से अफेक्ट हो रहा है, आवर व्हाट आर द फैक्टर्स इन आवर लाइफस्टाइल व्हिच इज गेटिंग आवर बोन हेल्थ अफेक्टेड? सो पहला आते हैं फिजिकल एक्टिविटी। सो इज देयर एनी रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन बोन स्ट्रेंथ और बोन हेल्थ? एक्चुअली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जो फिजिकल एक्टिविटी होती है हमारी, वो इसलिए इतनी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उस फिजिकल एक्टिविटी से हमारी जो बोन्स हैं वो स्ट्रेंथन होती हैं, हमारा जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होती हैं, हमारा मसल कोऑर्डिनेशन जो है, बैलेंस कोऑर्डिनेशन जो है वो बेटर होता है। ये सारी चीज़ें मिलकर हमें बोन हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं, और साथ ही साथ अगर हमारी बोन या मसल हेल्थ कहीं पे कॉम्प्रोमाइज हो रही है और साथ में हमारा बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन भी खराब है, तो Yeah. देयर इज ऑलवेज अ हायर चांस ऑफ फॉलिंग डाउन एंड गेटिंग इंजर्ड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि फिजिकल हेल्थ, फिजिकल एक्टिविटी का कोई ना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन किसी न किसी तरह से अल्टीमेटली हमारे बोन एंड जॉइंट को अफेक्ट करता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर इज कि नॉर्मली भी हमारी नॉर्मल ग्रोथ में जो बोन्स हमारी बनती हैं, डेवलप होती हैं और स्ट्रेंथन होती हैं, वो सारी ही बोन्स का सिंपल एक लॉ होता है कि जितना उस पर स्ट्रेंथ, जितना उस पर लोड आएगा, उतनी ही ज्यादा बोन स्ट्रांग बनेंगी। सो इट इज द सिंपल वुल्फ लॉ की बोन डेपोजिशन अकर्स ओनली एंड ओनली व्हेन इट इज लोडेड। तो अगर फिजिकल एक्टिविटी होगी ही नहीं, अगर बोन की लोडिंग होगी ही नहीं, तो इट इज हाईली लाइकली that one may land up with you know weak bones and osteoporosis in the future. So Okay. physical activity is very important and probably is the paramount thing when it comes down to bone health. Yes, yeah, yeah. So physical activity, I think whatever you shared was powerful because जितना load bones लेगा उतना bone I mean it is, Absolutely. yeah. So that's great. इसका मतलब sedentary lifestyle बस weight ही नहीं दे रहा है, वो हमारे bones को भी affect कर रहा है. एब्सोल्युटली, विदाउट अ डाउट, इसमें कोई शक नहीं रहना चाहिए किसी को भी। और Yes. सबको ये बात बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए कि हमारी जो बोन्स के साथ में जो सपोर्ट सिस्टम है, वो जो हमारी मसल्स है, वो Yeah. सारी मसल्स भी साथ में कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं। Mhm. इनफैक्ट बिफोर द बोन एंड द जॉइंट्स गो इनटू आर्थराइटिस, इट Yeah. इज द मसल्स अराउंड द जॉइंट्स विच बिकम Mhm. वीक। वो Mhm. मसल्स पहले वीक होती हैं और उसके बाद में जो वेट है वो सारा जॉइंट पे पड़ता है, Yeah. जिसकी वजह से जो हमारे को आर्थराइटिस 60 ईयर्स 70 ईयर्स पे देखने को मिलता था पहले, वो आजकल हमें 35-40 ईयर्स इस एज ग्रुप में भी देखने को मिलना शुरू हो गया है। सो इट Okay. इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yeah, yes. Okay, ठीक है। तो फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिडेंटरी लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अफेक्टिंग यू एज बस वेट गेन हो रहा है ऐसा नहीं सोचना है, इट इज अफेक्टिंग आवर बोन्स एज वेल। कमिंग टू अदर एब्सोल्युटली। फैक्टर्स डॉक्टर, जैसे कि आजकल काफी ट्रेंड हो गया खाना पीना भी, इफ वी कम टू डाइट, है ना?
नाउ डाइट में फ्राइडेज पार्टी, सैटरडे संडे, वो वीकेंड पार्टी तो रहता ही है जहाँ पर आप बाहर का खाते हैं, पर अगर हम नहीं भी खाते हैं बाहर, फिर भी जोमेटो स्विगी कहीं ना कहीं से आता ही है खाना, है ना। तो वी आर मोर यूज टू आउटसाइड फूड, वो ट्रेंड बन गया है कि खाना ही है। प्लस अगर घर में भी जो खाते हैं वो भी काफी हेल्दी नहीं रह गया। सो लेट अस टॉक अबाउट डाइट हियर, कि डाइट हमें कैसा, मतलब डाइट कैसा अफेक्ट कर रहा है बोन हेल्थ को, और क्या चीजों का हमें ध्यान, वी हैव टू टेक केयर इन डाइट सो पर्सपेक्टिव, या। एब्सोल्युटली, देखिए डाइट का जो रोल होता है, वो डाइट का रोल जैसे और सिस्टम्स में होता है वैसे ही बोन एंड जॉइंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बोन्स को बना के और मेंटेन करने के लिए, राइट फ्रॉम कैल्शियम टू विटामिन सी, विटामिन डी, मैग्नीशियम, प्रोटीन, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपार्ट फ्रॉम सेवरल अदर न्यूट्रिएंट्स विच प्ले अ कोलैबोरेटिव रोल, जिसके साथ ही हमारा बोन फॉर्मेशन कंटिन्यू होता है और मेंटेन होता है। बट इन इंग्रेडिएंट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैल्शियम को आप समझिए कि, सबको मैं समझाने के लिए बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ कि हम जो कैल्शियम खाते हैं, उस कैल्शियम को हमारे पेट से एब्जॉर्ब करके बोन्स तक ले जाने के लिए जो कैरियर है वो विटामिन डी है। यस। आपको ये बात सबको समझनी पड़ेगी कि अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी नहीं है और आप कैल्शियम एडिक्वेट भी खा रहे हैं या साथ में सप्लीमेंट भी कर रहे हैं, उसका कोई रोल नहीं रह जाएगा अगर आपके पास में विटामिन डी नहीं है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिप्लेनिश ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, चाहे वो आप नेचुरल डाइट से करें प्रेफरेबली, और साथ ही साथ आप सप्लीमेंट्स लेने में भी बिल्कुल भी झिझके नहीं, क्योंकि हमारी जो डाइट है वो आजकल के एनवायरनमेंट में, जहाँ पे एवरीवन वांट्स टू वर्क, there is a hustle for everyone wants to race and everyone wants to win the professional race, बट इस सब के बीच में हमारी पर्सनल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो हमारे वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी डाइट से पूरे नहीं हो पाते हैं, one should not hesitate to take supplements. There are a lot of good quality supplements these days available in the market. या। One should always be very proactive, कि उनको ये बात समझनी चाहिए कि हमारा 12 आवर्स का वर्किंग शेड्यूल है। It is practically impossible for someone having a 12-hour working schedule to have a balanced diet. You या। know, they may be able to manage 2 or maybe 3 meals in the day. They may be packing their food and taking to their office or to their workplace. But when they come back, I don't think that there is any one of us, including all of us, जो शायद आकर एक अच्छा मील प्रिपेयर कर पाए अपने लिए और इंश्योर कर पाए कि मैं अपनी बैलेंस डाइट को पूरी तरह से ले रहा हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि इन टुडेज वर्ल्ड विद द ऑल द हसल एंड बसल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को अच्छे से सप्लीमेंटेड रखें। All the orthopedic surgeons, I believe, they always encourage you to keep your calcium and vitamin D towards the higher range, या। because विटामिन डी का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो ट्रेडिशनली होता था वो होता था सन एक्सपोजर। यस। अब सन एक्सपोजर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आजकल सब लोग इंडोर्स काम करना प्रेफर करते हैं। देयर इज, इन समर्स पीपल डोंट गेट आउट बिकॉज इट्स वेरी हॉट एंड ह्यूमिड, स्पेशली इन इंडिया, and a lot of people, even when we are getting out, there is no concept of sunbathing in India, so people are always fully clothed and they are going out, so hardly हमारा sun exposure हो पाता है। तो हमारे तो इंडियन पॉपुलेशन में एज अ रूल ऑफ थंब vitamin D is always deficient. True. So all of us, I believe, even amongst my family, friends, I encourage everyone to be highly replenished with vitamin D. It's very important. And on this very juncture, I would also like you as a health coach to recommend everyone that what should they incorporate in their diet so that they are able to replenish calcium, vitamin D, protein for their complete bone health. Yeah. डेफिनेटली। तो वट एवर यू टोल्ड डॉक्टर, यस एब्सोल्युटली ट्रू कि सन एक्सपोजर होना चाहिए, पर अब तो ऐसा भी हो गया है कि वी डोंट गो आउट, बिकॉज एक तो है कि वी रेजिस्टेंस भी कम हो गया है, हम धूप को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हैं। Absolutely. यू पीपल आर स्टार्टेड फीलिंग कि मेरे स्किन खराब हो जाएंगे, एंड ऑल दोस एरियाज आर आल्सो देयर कि पीपल डोंट गो आउट। बट यस 100% जो मैं बोलूंगी, सन एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है विटामिन डी के लिए। इफ आई हैव सीन इन माई ओन केस, और जो भी हमारे क्लाइंट्स के केसेस है, बिफोर आई गो अहेड मैं आपको बताना चाहूंगी उसमें, बिफोर गो अहेड विद द फूड सोर्सेज, but all the clients wherever we start for weight loss, we definitely do this test, basic blood test, तो उसमें vitamin D तो रहता ही है। and all the people, I think 2% लोगों का शायद vitamin D सही होता है, सबका vitamin D 18, 15, 6, 5 तक आता है, और उनको कोई कुछ भी खबर नहीं, because they have been ignoring the symptoms.
एंड जब हम पूछते हैं कि आपने कब करवाया था अपना विटामिन डी टेस्ट लास्ट, तो बोला कि ज़रूरत ही नहीं हुआ, ज़रूरत ही नहीं महसूस हुआ, हमने कभी नहीं करवाया या हमने कराया था शायद 2 साल पहले। सो थिंग्स लाइक दैट पीपल आर नॉट अवेयर कि विटामिन डी इज़ समथिंग जो हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, नॉट ओनली फॉर बोन्स बट इट अफेक्ट्स ओवरऑल इम्यूनिटी, बहुत कुछ कम हो जाता है। एंड तो कमिंग टू दैट विटामिन डी का जो फूड सोर्सेज जो आप बता रहे और या कैल्शियम के रिच तो सबको ही पता है कि मिल्क, चीज़, डेयरी प्रोडक्ट्स में है। बट वही है कि ऑल आर एडल्ट्रेटेड नाउअडेज, है ना? मतलब पीना तो है बट ऑल द काउज आर इंजेक्टेड, ऑल द वही काउ मिल्क से जो बनता है दैट इज ऑब्वियसली तो समथिंग व्हिच आल्सो डिस्टर्ब द हार्मोन अगर हम बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लेते हैं। तो प्लांट बेस्ड अगर कोई वीगन है तो बाकी सोर्सेज में शिफ्ट हो सकता है, चिया सीड्स, एलमंड्स। बट ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप एलमंड, चिया सीड्स खाकर अपना विटामिन डी, कैल्शियम को फुलफिल कर लो। तो आपने राइटली बोला कि वी शुड बी सप्लीमेंटिंग विद द राइट सप्लीमेंट। डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ सिंथेटिक सप्लीमेंट्स व्हिच वी डोंट सजेस्ट। वो भी एक लोगों में अवेयरनेस रहना चाहिए कि जस्ट डोंट जस्ट पॉप अप कर लो कुछ भी पिल। एंड नेक्स्ट है कि नॉन वेज के लिए फिर भी यू हैव एग्स, यू हैव शी फिश वगैरह वगैरह, मशरूम्स है, बट दे डोंट गिव 100% विटामिन डी, सो दे कैन नॉट मेक इट बैलेंस्ड विथ ओनली फूड। तो इसीलिए एंड ड्राई फ्रूट्स में है विटामिन, सॉरी, कैल्शियम, प्रोटीन, सम अमाउंट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। So, and again coming to, so all the vitamins which are vitamin related, जैसे कि magnesium, sorry, bone related, these are all green leafy vegetables. So all these things I think we can include, but we should be really doing the choices mindfully, क्योंकि हम खाते ही नहीं है। अगर हम सोचते भी हैं कि ग्रीन लीफीज कब खाया था, ड्राई फ्रूट्स कब खाया था, एक्चुअली कब खाया था, हफ्ते में एक बार तो खा ही लेते हैं, काइंड ऑफ डील। सो इट इज बेटर, व्हाट आई वुड सजेस्ट एज अ हेल्थ कोच इज अपने ब्लड पैरामीटर से अवेयर रहकर हम डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे कितना जरूरत है। दिस इज माय I टेक। also absolutely. I also completely agree with that. The whole point of making people understand over here is कि ये बहुत ज़रूरी है कि सब ये समझें कि हम एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, ऐसा नहीं है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन ने बोला तो आप ऐसा कर लें, हेल्थ कोच ने बोला तो आप ऐसा कर लें, आपके पड़ोसी ने बोला तो आप ऐसा कर लें। You have to have a holistic approach towards everything in life, not just vitamin D deficiency. तो विटामिन डी डेफिशिएंसी को भी अगर आप थोड़ा अपना सनलाइट एक्सपोजर बढ़ाएं, कुछ डाइट में इंक्लूड करने की कोशिश करें, कुछ सप्लीमेंट करने की कोशिश करें, कुछ वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करें, ताकि आपको विटामिन डी पूरा मिल भी पाए, आपका विटामिन डी कैल्शियम को लेकर आपके बोन्स तक जाए भी, और जब आप वेट ट्रेनिंग करेंगे तो उससे आपकी मसल्स को, आपकी बोन्स को स्ट्रेंथ मिले भी, तभी करेक्ट। ये साइकिल कंप्लीट होगा। और इसी होलिस्टिक साइकिल के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच होना बहुत जरूरी है। किसी एक सोर्स के पीछे ना भागें कि मुझे इसी से विटामिन डी या कैल्शियम का अपना इंटेक पूरा करना है, बिकॉज दैट इज प्रैक्टिकली या इम्पॉसिबल, एंड यू शुड नॉट run after any of such sources, because it is completely impossible कि आप एक ही सोर्स से अपना सारा पूर्ति कर पाए। हाँ, करेक्ट। ऐसे केसेस जरूर हमारे पास आते हैं जो बहुत एक्सट्रीमली डेफिशिएंट होते हैं विटामिन डी में, तो उनको हम इंजेक्टेबल्स सजेस्ट करते हैं या उनको वीकली डोजेस सजेस्ट करते हैं, हाई डोज में विटामिन डी देते हैं, या बट दैट इज ओनली टिल द पॉइंट जब वो नॉर्मल रेंज में आ जाए। या उसके बाद में उनको फिर से मेंटेन करना खुद से ही है, और या वो एक होलिस्टिक अप्रोच से ही हो सकता है। Absolutely. Thank you so much for this, whatever you told about vitamin D, because ये awareness बहुत जरूरी है। And Yes. and now couple of food items मैं आपको बताऊंगी, आप बताना बोन्स के लिए कितना खराब है, ठीक है? बिकॉज ये बहुत कॉमनली यूज फूड आइटम्स है। सो जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, हाउ इट इम्पैक्ट्स द बोन। सो देखिए, आई एम अ बिलीवर कि जो भी सिंथेटिक कंपोनेंट वाली चीजें आती हैं, लेट्स नॉट जस्ट टॉक अबाउट कोल्ड ड्रिंक्स, लेट्स टॉक अबाउट ऑल द एरेटेड ड्रिंक्स या पर से। फॉर एग्जाम्पल ये जितनी भी सिंथेटिक ड्रिंक्स आती हैं, इनके प्रिपरेशन में द अमाउंट ऑफ शुगर्स एंड द प्रोसेस्ड शुगर्स and various other chemicals and preservatives used, there are n number of things, they are so high यस that at the end of the day, it's not just bones that they are damaging. एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये हैबिट फॉर्मिंग चीजें होती हैं। आप एक बार कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, इनफैक्ट आप अपना छोड़िए, आप अपने बच्चे को एक बार कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे, वो आपसे दोबारा कोल्ड ड्रिंक जरूर मांगेगा। आप उसको दूध एक बार पिलाएंगे, वो शायद आपसे दूध दोबारा ना मांगे, जिससे ये पता लगता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैबिट फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं। और
इन एजेंट्स का जो मैकेनिज्म जो बॉडी में एक्ट करता है वो इसी तरह से एक्ट करता है कि आपने एक बार लिया तो आपका ब्रेन आपको बोलेगा मुझे ये दोबारा चाहिए, आपको क्रेविंग होगी एंड यू विल कीप रनिंग बिहाइंड दीज थिंग्स। और ये सारी चीजें आपके बोन एंड जॉइंट्स एंड मसल्स के लिए दे आर एक्सट्रीमली हार्मफुल। Yeah. They don't affect the bones and muscle. It's not just that they affect the bones and muscles directly, Hmm. डायरेक्टली तो डैमेज करते ही करते हैं, Hmm. साथ ही साथ वो आपको एक फॉल्स फुलफिलमेंट की फीलिंग देते हैं, जिसके बाद में आप अपना नॉर्मल न्यूट्रिशन को नहीं लेते। आप समझिए कि लेट से कि चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चाहे एरेटेड बेवरेजेस हैं, चाहे Hmm. अल्कोहल है, तो Hmm. इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इनके डायरेक्ट डैमेज हो रहे हैं, वो तो है ही है, दैट Hmm. गोज Hmm. विदाउट सेइंग। Yeah. बट इससे प्रॉब्लम क्या होती है, किसी ने अभी एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक पी ली, उसको 3 घंटे तक भूख नहीं लगेगी, तो उसको जो अपनी नॉर्मल मील इनटेक लेना था, जो उसका बेसलाइन मेंटेन कर रहा था, अब Hmm. वो भी नहीं मेंटेन होगा। तो Hmm. इनसे ये सेकेंडरी प्रॉब्लम्स और आती हैं एंड ये डबल हिट हो जाता है बोन एंड मसल्स के लिए, जिसकी Hmm. वजह से लॉन्ग टर्म में देयर इज अ वेरी सिवियर अफेक्शन ऑफ बोन एंड मसल्स। Yes. Yeah. So I think same goes with your packaged foods and your chips, एब्सोल्युटली, high sodium, high sugary, डेफिनेटली, everything which is डेफिनेटली, processed is affecting our bone health in that way. You know. यस, यस, Yes, many times ये मुझे याद आया आपने जब बताया कि I have seen moms, telling their या, children कि जूस पी लो बेटा जूस पी लो, but the juice डेफिनेटली, was cold drinks, and I यस, was यस, like, I was like worried कि अरे cold drinks is not a juice. In fact, कोई भी packet juice is not a juice. That is all sugar, है ना? और there एब्सोल्युटली। is, yeah. Anyway, That is precisely why I just changed the word from cold drink to mm, anything synthetic। जो भी आपको सिंथेटिक मार्केट में मिल रहा है, वो mm, कोई भी आइटम बिना केमिकल्स के, बिना mm, प्रेजर्वेटिव्स के प्रिपेयर हो ही नहीं सकता। आप अगर mm, कोई भी आइटम खरीद रहे हैं, जो जैसे जूस हो गया, अगर हम घर में जूस बनाते हैं, तो mm, आप खुद बताइए कि आप जूस को जब बना के रख देते हैं, थोड़ी देर बाद ही उसका टेस्ट ऑल्टर होना शुरू हो जाता है। yes, तो एक ऐसा जूस जो मार्च 2024 में बना और उसकी एक्सपायरी दिसंबर 2024 में है, I know, इज yeah, इट इवन पॉसिबल दैट इट इज गोइंग टू बी केमिकल्स एंड प्रिजर्वेटिव फ्री? इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। yeah, सो एवरीवन शुड कीप इन माइंड, चाहे वो कोई भी आइटम हो, एनी आइटम दैट यू आर कंज्यूमिंग, कि mm, कहीं ना कहीं उधर केमिकल या प्रेजर्वेटिव है। एंड mm, mm, जिसमें जितना ज्यादा हैबिट फॉर्मिंग चीजें हैं, उसमें उतना ही ज्यादा देयर विल बी प्रोसेस्ड शुगर्स एंड दिस एंड दैट, that is going to harm you as an individual, not just your bones and muscles. mm. ठीक है। ग्रेट सो तो हमने डाइट के बारे में बात किया और अभी हम थोड़ा मूव होते हैं, हमने एक्सरसाइज के बारे में किया, तो मैं आपको बताती हूँ हमें जो हमारा लाइफस्टाइल असेसमेंट फॉर्म फिल होता है उसमें कैसे केसेस आते हैं बोन्स का। तो पीपल हु इज ओवरवेट, कोई कोई कैटेगरी ऑफ लोग होते हैं जो सिडेंटरी लाइफस्टाइल लीड करते हैं, तो उनको हमने जो देखा उनके लेग पेन्स होते हैं, बैक पेन होते हैं, मसल पेन होता है, ये कॉमन रहता है उसमें ना। कोई रहता है जैसे अगर कोई कॉलेज गोइंग यंग इंडिविजुअल ने स्टार्ट किया तो उसका बैक पेन और काफ मसल पेन इज वेरी कॉमन। ओके, नाउ सम एल्डरली वीमेन जो थोड़ा एल्डरली है, उनका ऐसा रहता है कि सब कुछ रहता है उनका, पूरा बॉडी में पेन रहता है, हाथ पैर कमर घुटने एवरीथिंग। तो आप इसमें क्या बोलना चाहोगे, लाइक कैसे हो सकता है, मतलब इस यंग एज में भी हो रहा है, सिडेंट्री में भी हो रहा है, तो वी हैव टॉक्ड अबाउट फिजिकल एक्टिविटी और फिर भी हम थोड़ा सा इसमें अगर डिस्कस कर ले कि व्हाट हैज हैपेंड एंड टिल दे रीच 45-50 उनका पूरा बदन दर्द करने लगता है कि कितना इग्नोर किया और कहाँ तक पहुंच गया है बॉडी। सो एब्सोल्युटली आई थिंक कि इस प्रॉब्लम को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम जो हमारे पास में पॉपुलेशन है, जो भी हमारी ऑडियंस है, उनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक यंग लोग, लेट्स से आजकल हम 50 से कम वालों को यंग बोलते हैं, 50 से ऊपर वाले लोग ओल्ड हैं। और उन दोनों ग्रुप्स को हम सब डिवाइड कर लेते हैं कि यंग लोग जो काम कर रहे हैं या जो घर पे रह रहे हैं। और हम्म। घर पे रहने के साथ में ही वर्क फ्रॉम होम वाले लोगों को भी मैं घर पे रहने वाले लोगों में ही काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी फिजिकल Yeah. एक्टिविटी जीरो है फॉर ऑल प्रैक्टिकल मीन्स। हम्म। ऐसे ही हम ओल्ड एज में दो ग्रुप्स बना लेते हैं, एक जो काम करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं हम्म। अपने आप को, और एक ग्रुप जो घर में रहता है हम्म। हम्म। प्राइमरीली। तो अभी हम यंग ग्रुप लोगों की बात करें जो घर में रहते हैं, मुझे लगता है नाउ डेज विद द एडवेंट एंड ease of availability of mobile phones and data, what has happened is a lot of people are spending a lot of time on their mobile phone, and technically screen time बढ़ गया है। चाहे वो shows देखना हो, चाहे वो रील स्क्रॉल करना हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, दे जस्ट गो टू देयर फोन्स। लाइक अगर उनको कुछ चीज है दैट दे वांट टू, इवन पीपल वांट टू कुक एट होम,
what happens is, earlier they used to think कि हाँ चलो ये बनाते हैं, किसी से फोन पे पूछ लेते हैं. Nowadays they would just open YouTube, search for the dish, keep the phone in front of them, and then just keep preparing the dish. So what has happened is people are spending a lot of time on their phones, on their screens, because of which उनका जो posture है, जिस posture में वो बैठ के ये काम करते हैं या लेट के ये काम करते हैं, इनवेरिएबली आप देखेंगे कि जो लोग हमारे घरों में है या हमारी फैमिली फ्रेंड्स में है, जो अपना ज्यादातर टाइम घर पे बिताते हैं, उनका कोई फिक्स पोस्चर होता ही नहीं. दे डोंट हैव अ सिटिंग स्पेस, दे डोंट हैव अ वर्किंग स्पेस. उनका या तो होता है या बेड पे है वो, या फिर वो किचन में है, या बालकनी में चेयर पे बैठे हैं. दैट्स इट. ये तीन जगहें होती हैं. इसके बीच में भी बस घूमना बहुत कम होता है, एंड दैट्स इट फॉर देम. सो मुझे लगता है उनमें प्राइमरीली एक बहुत बड़ा लैक्यूना है कि वो फिजिकल एक्टिविटी में बिल्कुल भी इंडल्ज नहीं कर रहे हैं, और जब वो स्क्रीन टाइम अपना बिता रहे हैं तब उनका पोस्चर बहुत ही खराब है. इसके साथ साथ अलोंग विद दैट उनका सनलाइट एक्सपोजर जीरो है. Yeah. तो ये सारे फैक्टर्स कंबाइन होकर उनके बोन एंड जॉइंट हेल्थ को इतना खराब तरीके से अफेक्ट करते हैं दैट वंस दे गेट इनटू दैट लूप कि मेरे को बोन एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, उनका कोई देयर इज नो टर्निंग बैक फॉर देम. दे गो फ्रॉम वन प्रॉब्लम टू द अदर, बिकॉज उनका लाइफस्टाइल तो वैसे ही रहता है, वो चेंज तो कर नहीं पाते. Then it brings me to the second group, which is the younger age group, which is who's like working, every day. तो पहले क्या होता था, you had to travel by public transport. Yeah. लोग अपने घर से चल के जाते थे, बस पकड़ते थे, और फिर चल के जाते थे अपने ऑफिस तक. ऐसा सिस्टम होता था पहले. बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज, एवरीवन वांट्स टू टेक अ कैब. 1 किलोमीटर पे जाना है, पीपल वांट टू हैव अ कैब. मेरे को घर के नीचे कैब चाहिए, कैब यहाँ से लेके मुझे वहां पे ड्रॉप करेगी. Similarly, public transport say people don't like to travel, especially in metropolitan cities, because it's very crowded. At times, they would be like any day they would be more comfortable traveling by their own car or hailing a cab. बट उससे क्या हो रहा है कि जितना लिमिटेड उनका चलना था दिन में, अब वो भी नहीं हो पा रहा है. उसके बाद में वो ऑफिस चले जाते हैं. ऑफिस में all the engineers, all the CAs who are working, they have to spend around 10 hours in the office. उस 10 घंटे में वो एक केबिन में बैठे रहते हैं, एक चेयर पे बैठे रहते हैं. द मैक्सिमम दे विल do is have 2 cups of coffee in the day and have one cigarette. Yes. That is for sure. ये जो स्मोकिंग की हैबिट और वेपिंग की हैबिट और साथ ही साथ कैफीन इंटेक की जो एक हैबिट बन चुकी है यंग एज ग्रुप में, जो बाहर जाता है काम करने. आपने देखा होगा, लाइक इन माई सर्कल ऑल द पीपल हु आर गोइंग टू ऑफिस, ये उनका परमानेंट रूटीन है. इसके अलावा वो खाएं ना खाएं उससे फर्क नहीं पड़ता, बट दिन की 2 कॉफी, एक सिगरेट, ये तो पक्का है उनका. सो it is very important to understand that high amounts of caffeine intake and smoking affects all your systems without a doubt, right? Starting from your blood vessels, your blood flow अगर कोई चीज अफेक्ट कर रही है तो वो आपके सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि बॉडी में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा ब्लड फ्लो, एक हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. स्मोकिंग दोनों ही जगह को किल कर देता है. अगर दोनों ही जगह को किल कर देता है तो आपके सारे ऑर्गन्स को इन वन वे और द अदर स्मोकिंग इज अफेक्टिंग अ लॉट. सो व्हाट हैपेंस इज कि इस एज ग्रुप में हम ये एक्सपेक्ट तो कर ही नहीं रहे कि ये बैलेंस डाइट ले पाए. हम ये सोच रहे हैं एक मील घर से बनाकर ले जाए, वो भी प्लस माइनस होता है दैट दे कंज्यूम और नॉट, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर. एंड that is how the young population also likes to justify smoking and caffeine intake as well कि यार बहुत स्ट्रेस है, मैं काम नहीं कर सकता, स्मोकिंग है मेरा. बट ऑल सेड एंड डन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हमारी पॉपुलेशन की यंगर जनरेशन ही ये नहीं समझेगी कि व्हाट इज राइट फॉर देम एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर देम, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड एंड मेक द एल्डरली अंडरस्टैंड. अगर हमारा एज ग्रुप ही अच्छे से समझ जाए कि हमारे लिए क्या ठीक है, क्या हमें डिस्करेज करना चाहिए, क्या इनकरेज करना चाहिए, हमारे बाकी दोनों एज ग्रुप्स की प्रॉब्लम्स बहुत ईजी हो जाएंगी. एंड सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू ओवर 50 years ऑफ एज, मैंने 50 years का ब्रैकेट इसलिए रखा है क्योंकि 50 years के बाद में मोर और लेस चाहे आप कैसा भी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, आपकी बॉडी में एज रिलेटेड चेंजेस आने लग जाते हैं. इनफैक्ट आने उससे पहले ही लग जाते हैं, लेकिन 50 साल के बाद में आपको महसूस होने लग जाते हैं. तो 50 years के बाद में क्या होता है, जो पॉपुलेशन घर में रहती है, लेट अस से मोस्टली द पॉपुलेशन व्हिच इज बियॉन्ड लाइक 50 years आर आइदर बिजनेसमैन, और अगर हम फीमेल्स में बात करें, some of them are working but majority of them are confined to their homes.
तो उसमें प्रॉब्लम Yeah. क्या होती है कि प्रोलॉन्ग पीरियड उनका घर पे रहने की वजह से वेट गेन हैज बिकम अ Hmm. वेरी इंपॉर्टेंट इशू। तो जो वेट गेन हो रहा है कंसिस्टेंटली, परसिस्टेंट कैलोरी इनटेक से, परसिस्टेंट ऑयल एंड घी इनटेक से, परसिस्टेंट प्रोसेस शुगर के इनटेक से, वो वेट Hmm. गेन बहुत इम्पेरेटिव हो जाता है उस ग्रुप में। तो Hmm. उस ग्रुप में वेट गेन इसलिए इम्पेरेटिव हो जाता है क्योंकि एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि लेट अस से कि एक इंसान का वेट 200 केजीज है, दिस इज Hmm. जस्ट फॉर एग्जांपल एंड Yeah. फॉर एक्सप्लेनिंग कि कैलकुलेशन इजी हो जाए। 200 किलो एक जने का वेट है, Hmm. उसके पास में दो घुटने हैं, एक Hmm. घुटने से 100 केजी, दूसरे घुटने से 100 केजी ट्रांसमिट हो। अब हम लेट से राइट नी की बात कर रहे हैं, उससे 100 किलो Hmm. वेट जाना है। अब Hmm. इसको ले जाने के लिए या तो हमारा नी जॉइंट है या Hmm. उसके आसपास की मसल्स है। Yeah. लेट से मेरी एज में मेरा करेंटली Hmm. 80 वेट जो है, 80 जो वेट है वो मेरा नी जॉइंट लेके जाता है, और Hmm. 20 जो वेट है वो मेरे आसपास की मसल्स लेके जाती है। Hmm. Hmm. अगर मैं आपको बताता हूँ कि आप मेरे मसल्स की वेट ट्रेनिंग करें, आप Hmm. मेरे को वेट ट्रेनिंग करवाएं मेरे मसल्स की, Hmm. अगर मैं अपने ट्रेनर को बोलता हूँ मेरे को अच्छे से मसल्स अपनी स्ट्रांग करनी है, Hmm. लेट्स से 6 मंथ्स डाउन द लाइन वेट ट्रेनिंग की मदद से, लोडिंग की मदद से मैंने अपनी मसल्स को Hmm. ट्वाइस कर लिया, मेरी Hmm. मसल्स डबल हो गई, मेरी मसल्स की स्ट्रेंथ। तो Hmm. अब मेरी मसल्स जो है वो 20 के बजाय 40 वेट लेके चली जाएंगी, और Hmm. मेरा घुटना जो है उस पर सिर्फ 60 ही वेट आएगा। तो Hmm. अब आप सोचिए कि अभी से लेकर मेरे 60 इयर्स ऑफ एज तक होने तक अगर Hmm. मैंने उन मसल्स को डबल स्ट्रेंथ या ट्रिपल स्ट्रेंथ पे मेंटेन किया, तो Yeah. टेक्निकली आई हैव ऑफलोडेड माय नी। और अगर Hmm. मैंने नी को ऑफलोड कर दिया तो उसमें आर्थराइटिस होने के चांसेस, उसमें पेन होने के चांसेस सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं। काम हो जाएंगे। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको मैं शायद अपने पूरे ऑर्थोपेडिक करियर में एक्सप्लेन करता आया हूँ, और शायद मैं पूरे ऑर्थोपेडिक करियर हर पेशेंट को ये बात एक्सप्लेन करता रहूंगा, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि Hmm. आपके जॉइंट्स, आपकी बोन्स के साथ साथ उस Hmm. जॉइंट के आसपास की मसल्स का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। Hmm. आपको बचाने के लिए, आपके जोड़ों को बचाने के लिए उसके आसपास की मांसपेशियां, उसके आसपास की मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। Correct. अगर कोई भी ये समझ जाए जो 50 के बियॉन्ड पॉपुलेशन है और प्राइमरीली अपना टाइम घर में बिताती है, अगर Yes. वो वेट ट्रेनिंग में इंडल्ज करें, आफ्टर हैविंग अ बैलेंस डाइट, आफ्टर Hmm. ट्राइंग टू लूज वेट विद अ प्रोफेशनल हेल्प और ऑन देयर ओन, बिकॉज अपने आप को करना बहुत मुश्किल होता है। तो Hmm. एक प्रोफेशनल हेल्प अगर आपके पास हो, एक गाइडेंस अगर आपके पास में हो, आई Hmm. फील कि आप अपने एफर्ट्स को चैनलाइज कर सकते हैं एंड यू कैन लूज वेट with probably lower amount of efforts to a higher extent। और Yeah. उसके बाद में आप अपने मसल्स को वेट ट्रेन करें तो आप अपने जॉइंट्स को सेव कर सकते हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी डाउन टू द फोर्थ सबसेट, जो Hmm. 50 साल से ऊपर है और Hmm. अभी भी काम में इंडल्ज करते हैं। Hmm. ऐसे पॉपुलेशन में ऑलरेडी हमने देखा है कि जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं जो घर पे रहते हैं मेजरली, Hmm. ऐसे इस ग्रुप में चेंजेस कम होते हैं एज रिलेटेड, बिकॉज Hmm. दे हैव ऑलवेज बीन वर्किंग, दे हैव ऑलवेज बीन वॉकिंग 5 किलोमीटर्स अ डे एट लीस्ट, Yes. एंड दे हैव ऑलवेज बीन डूइंग समथिंग और द अदर। क्योंकि Hmm. ऐसे लोगों को 40-45 में जैसे ही फर्स्ट हिट हुआ, जैसे ही पहली बार पेन हुआ, तो Hmm. उनको ये बात समझ में आ गई कि मेरा एज ऑफ रिटायरमेंट तो 60 ईयर्स है, Hmm. मुझे तो 60 साल तक काम करना है, आई हैव अ फैमिली टू कीप। उन्होंने 45 ईयर्स पे ही अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर लिया, और उसके बाद में दे आर एट अ बेटर प्लेस। अभी भी दे आर नॉट वेरी हैप्पी प्रोबेबली, बट दे आर डेफिनेटली एट अ बेटर प्लेस देन देयर काउंटर पार्ट्स हु आर स्टेइंग एट होम। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है इस एज ग्रुप में भी कि इस एज ग्रुप में भी वेट मॉड्यूलेशन हो, और साथ ही साथ एक बैलेंस डाइट के बाद अगर पेशेंट वेट ट्रेन करे, अपने Hmm. पॉस्चर को करेक्ट करे, Yeah. और एक सनलाइट एक्सपोजर के लिए जाए, साथ ही साथ ये 50 के बियॉन्ड का एज ग्रुप, इनको सप्लीमेंट्स लेना इज कंपल्सरी। इनफैक्ट फीमेल्स के लिए तो बियॉन्ड 45 या आफ्टर मेनोपॉज इट Yeah. इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि वो अपने आप को अच्छे से सप्लीमेंट करें, बिकॉज मेनोपॉज के बाद में एस्ट्रोजन जो होता है, जो एक सेक्स रिलेटेड हार्मोन होता है जो हमारी बोन्स को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है, उसका अमाउंट बॉडी में Sure. सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। Yeah. और उसके कम होने के साथ साथ फीमेल्स जो होती हैं वो पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप में दे बिकम हाईली ससेप्टेबल टू फ्रैक्चर्स। Correct. उनको एक लो एनर्जी ट्रॉमा से, एक छोटी सी चोट से, जिस चोट से उनको 30 साल की उम्र में कुछ नहीं होता, उसी अमाउंट ऑफ चोट से ही उनकी सीधा हड्डी टूट जाती है आफ्टर मेनोपॉज। Hmm. तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। Yeah. Wow.
So I think, whatever you shared till now, I was just imagining जब आपने बोला कि, and it was so true, जैसे हमारा लाइफस्टाइल था पहले, अभी जैसा हो रहा है, वी आर रियली चेयर चेयर बिस्तर चेयर सोफा, यहाँ लिमिट ऑफिस का चेयर, इट इज लिमिटेड टू दैट ओनली. तो यस, आई वाज आल्सो इमेजिंग लाइक, अगर मैं भी सोचूं 15 साल पहले मेरा लाइफस्टाइल कैसा था, अभी कैसा है. यस, वी आर बाउंड, वी फॉरगॉट कि हमें अभी मिल रहा है तो चलो ऐसे ही चलाते हैं. सो थिंग्स लाइक दैट, एंड इट वाज रियली आई ओपनर. सो आई होप आप सभी को भी समझ में आ रहा है, क्योंकि जो भी डॉक्टर तुषार ने शेयर किया, इट वाज रियल क्वाइट पावरफुल, एंड हम सभी को अवेयर होना बहुत जरूरी है. जैसे क्योंकि आपने काफी लंबा जो एक्सप्लेन किया, उसमें से काफी टेक अवेज मेरा तो था, जो मैं सोच रही थी आप जब बता रहे हो. एंड सो इसका मतलब, अगर मैं बोलूँ कि कोई भी एज ग्रुप में, आज हमारे जो व्यूअर्स है वो कोई भी एज ग्रुप में हो, उनको वो होलिस्टिक अप्रोच तो हेल्थ का अपनाना ही है. अगर 30 में नहीं अपनाया तो 40 में तो अपनाना ही पड़ेगा, तो वाई नॉट 30, है ना. और अगर एब्सोल्युटली. ठीक है तो अभी अपना लो, क्योंकि 60 में जाकर और बुरा हालत होने वाला है. और अगर मुझे लगता है कि आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मुझे लगता है जो आपने अभी बात बोली ये सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे है कि आप आज नहीं अपनाओगे तो 10 साल बाद आप मांग के अपनाओगे इस चीज को. या बिकॉज बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनका नी हम प्रोबेबली बचा सकते थे एक नी रिप्लेसमेंट से, या बट अब जब उनको 5 डॉक्टर्स ने कंसिस्टेंटली बोल दिया कि आपको नी रिप्लेसमेंट कराना ही पड़ेगा, नाउ दे आर लाइक, कैन आई चेंज माई लाइफ स्टाइल एंड कैन आई गेट माई नी बैक, बट it's not going to happen like that. ट्रू ट्रू ट्रू. You have to change your lifestyle at the right age, with the right guidance, in the right direction to achieve a healthy lifestyle. या यस यस. हाँ, तो आप या तो हमने बहुत सारा आई थिंक डिफरेंट फेजेस के ऊपर बात किया, मेनोपॉज वीमेन के बारे में बात किया. यस, वी आल्सो गेट मेनी मेनोपॉज वीमेन हु आर अप्रोचिंग मेनोपॉज, तो उनको बहुत बोलने लगते कि मेरा ये हो रहा है, हड्डियों में पेन हो रहा है, आई एम फीलिंग वेरी डिफरेंट, राइट. एंड आई नो, वी नो कि कहीं ना कहीं देयर आर लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस हैपनिंग बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन ड्रॉप, जो कहीं ना कहीं बोन्स पर भी इफेक्ट हो रहा है. सो नाउ तो डेफिनेटली जो आपने बताया, और एक चीज वेट ट्रेनिंग, आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड स्टार्ट विथ वेट ट्रेनिंग, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मसल बोन्स को स्ट्रॉन्गर करने के लिए. जो वेट ट्रेनिंग मिसिंग है, अगर हम सच में इंटेंशनली नहीं जाते हैं तो इट इज मिसिंग. सो आई थिंक वी कैन स्टार्ट विथ एनी बॉडी वेट ट्रेनिंग इनिशियली एट होम ओनली. अगर आपको लगता है कि आप जिम नहीं जा सकते तो घर में ही बॉडी वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं. ऑल दिस थिंग्स वी कैन डू. वीमेन स्पेशली इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्टली अगर अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर, तो सभी अगर सोचते हैं तो उनके घर में कोई तो मॉम होगी, आंटी होगी, या कोई होगा जिनके घुटनों में दर्द है. हर किसी के घर में वो चीज है. एंड ये इसलिए होता है कि वीमेन कहीं ना कहीं अपना सब कुछ घर का ख्याल रखती है, पर अपना घुटनों का मेनली बोन्स, ऑब्वियसली क्योंकि वो वेट कैरी करता है तो उसमें दिखने लगता है, एंड दे कीप इग्नोरिंग. मसाज कर लेते हैं, थोड़ा मसाज कर लिया, 1 साल चला गया, फिर 1 साल कैल्शियम टेबलेट ही खा लिया और 1 साल चला गया. ऐसे करते करते इट रीच कि उनका वो सूख ही गया है, जो उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो साइनोवियल फ्लूइड है वही सूख गया उनके हड्डियों के बीच का. एंड दे स्टार्ट नाउ गोइंग टू इंजेक्शन एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट. तो उतना नहीं जाकर, अगर हम अपने नॉट ओनली आर हेल्थ, अगर हम अपने पेरेंट्स का हेल्थ, अपने जो भी विमेन है या अपने एल्डरली पीपल है उनका हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं. जस्ट वी हैव टू बी अवेयर. Yes, and one thing more that I would like to highlight here कि वेट ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ आप, जब मैं किसी पेशेंट को अपने वेट ट्रेनिंग बताता हूँ तो उनको लगता है मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जिम में जाएं या और आप 20, 30, 40 किलो का वेट ट्रेनिंग करें. आई एम नॉट रेफरिंग टू दैट. यस. वेट ट्रेनिंग का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर मेरे को इस हाथ की मसल्स की ट्रेनिंग करनी है और मैं इस, जैसे मैंने ये घड़ी पहनी हुई है, अगर मैं इस घड़ी की जगह पे 1 किलो का एक बैंड बांध लूँ, देयर आर बैंड्स अवेलेबल, और मैं अपना रूटीन काम करूँ, तो भी मैं अपने हाथ की मसल्स की वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ. यस. So even if you are not comfortable going to the gym, you just get a 1 kg dumbbell. दो 1 किलो के डंबल ले लीजिए, आप उनसे एक्सरसाइज कीजिए. अगर आपको डंबल का करने का टाइम नहीं मिलता है, आप दोनों हाथों में 1 kg के बैंड बांध लीजिए, आप उससे काम कीजिए, अपने पैरों में बांध लीजिए. आप कंटिन्यूअली जब उसको यूज करेंगे, यू विल योरसेल्फ रियलाइज दैट समवेयर यू आर मेकिंग योर मसल्स स्ट्रॉन्गर दैन बिफोर. एंड जितना आपका मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगा उतना ही वो आपके जॉइंट्स को प्रिजर्व करेगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई फील दैट फॉर ऑल the majority of the viewers who are there on the social media, Yeah. we belong to the younger to middle age group. It is very important to teach our children to ingrain this right from the beginning. And it is very important for us to encourage our parents to indulge in weight training, Yeah. जो उनके जॉइंट को एक लंबे समय तक बचा के रख सके. Yes.
एब्सोल्युटली। और जैसे डॉक्टर तुषार ने बताया, वेट ट्रेनिंग इज नॉट गोइंग टू जिम ऑलवेज, ओके? तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए, यू कैन ऑलवेज डू वेट ट्रेनिंग एट होम एज वेल विद डिफरेंट टूल्स, है ना? सो ग्रेट। सो हमने एजिंग रिलेटेड भी बात ऑलमोस्ट कर लिया यहाँ पर कि अगर सब कुछ अच्छा चलता है फिर भी 50 के बाद क्या होता है, वो भी हमने बात कर लिया। जो हमारा अभी हम बात करने वाले थे कि एजिंग कैसे अफेक्ट करता है बोन्स को। तो और वीमेंस हेल्थ के बारे में भी हमने बात किया, कंपेयर टू लाइक मेन, कि वुमेन्स का क्या एक डिफरेंस होता है बिकॉज ऑफ द एस्ट्रोजन हार्मोन, क्या डिफरेंस होता है जिससे बोन्स बहुत तेजी से डैमेज होने लगता है, सॉरी वो बोन डेंसिटी कम होने लगता है बिकॉज ऑफ द मेनोपॉज थिंग, है ना? नाउ लेट्स कम टू द ओबेसिटी टॉपिक डॉक्टर। कि ओबेसिटी, वेट जो काफी कॉमन है आजकल, तो वेट को हम पैंडेमिक ही मानते हैं, और वेट को इतना देख लिया कि आप लोगों को लगता नहीं कि मैं ओवरवेट हूँ। मतलब कोई अगर 100 केजी भी लेकर चल रहा है तो दे डोंट थिंक कि चलो क्या है, हम खाते पीते घर के लोग हैं तो इट्स ओके। तो वेट तो अभी बहुत कॉमन ही हो गया है। और अगर किसी का हुआ है तो अगर हम फोन पे बात करते हैं तो बोलते नहीं मेरा बस 15 केजी ही जाता है, बस 15 केजी। हम सोचते हैं ये बस 15 केजी कम करने में कितना एफर्ट चाहिए, आपको पता ही नहीं है। तो एनीवे, तो आपने बताया कि वेट के वजह से कैसे वेट के वजह से क्या इफेक्ट होता है, थोड़ा और एक बार जस्ट क्विकली कि वेट की वजह से बोन्स में कैसा इफेक्ट हो रहा है, क्या हो सकता है? तो जस्ट टू गिव अ वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा बोन होता है उसमें जो बोन मैरो है, जहाँ पे हमारे बोन बनाने वाले सेल्स होते हैं, तो वहाँ पे दो तरह के सेल्स होते हैं, एक बोन बनाने वाले और एक फैट सेल्स। सिंपल सी बात है, जब आपके फैट सेल्स बढ़ने लग जाएंगे, आपके बॉडी का सारा हार्मोनल बैलेंस अब ऐसा हो गया है कि वो फैट प्रोडक्शन को प्रमोट कर रहा है, तो बोन में भी वो फैट फॉर्मिंग सेल्स बढ़ जाते हैं। और बोन फॉर्मिंग सेल्स एक फिक्स जगह है बोन में, उससे ज्यादा जगह हो नहीं सकती, उससे ज्यादा सेल्स हो नहीं सकते। या जब फैट सेल्स बढ़ने लग जाते हैं तो बोन फॉर्मिंग सेल्स कम होने लग जाते हैं। तो क्या होता है कि इन पेशेंट्स में एक रीजन ये हो जाता है कि बोन फॉर्मिंग सेल्स की एक्टिविटी कम हो जाती है। सेकेंड रीजन ये होता है जो हार्मोनल इंटरप्ले होता है पूरा ओबेसिटी को जो कंट्रीब्यूट करता है, वो कहीं ना कहीं बोन फॉर्मेशन को डिस्करेज करता है और बोन रिजॉर्प्शन को, मतलब बोन हटाने वाले हार्मोन्स को बढ़ाता है। और थर्ड रीजन इन पेशेंट्स में ये होता है कि ये क्योंकि ओबीज होते हैं, वन दे आर शाई ऑफ गोइंग आउट एंड ट्रेनिंग एंड आस्किंग फॉर अ प्रोफेशनल हेल्प एंड गाइडेंस। एंड सेकंड, अगर वो जाते भी हैं तो उनको इनिशियल फेज में थोड़ी प्रॉब्लम होती है ट्रेनिंग करने में या वेट लॉस ट्रेनिंग करने में, जिससे जिसको ओवरकम करना एक लीप ऑफ फेथ लेने जैसा होता है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा रीजन जो कंट्रीब्यूट करता है इन केसेस में वो ये होता है कि जैसे जैसे आप ओबीज होते जाते हैं, वैसे वैसे आपका जो पूरा बॉडी का सेंटर होता है वो एंटीरियरली आगे की तरफ बढ़ता जाता है, और आपके डिसबैलेंस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आप ओबीज अगर हैं और सिग्निफिकेंटली ओबीज हैं, तो आपने देखा होगा आपके आसपास भी बहुत सारे लोग जो सिग्निफिकेंटली ओबीज होते हैं, दे हैव अ डिफिकल्ट टाइम बैलेंसिंग देमसेल्फ, एंड व्हेन स्पेशली व्हेन दे आर गोइंग अप एंड डाउन अ स्लोप एंड अप एंड डाउन स्टेयर्स, तो उन पेशेंट में देयर आर हायर चांसेस ऑफ फॉलिंग डाउन, और जहां वो गिरे नहीं, एक वीक बोन के साथ में उनको फ्रैक्चर हो जाएगा। तो यस, प्रॉबेबली मेरे अकॉर्डिंग ये ओबेसिटी के जो फैक्टर्स हैं ये बहुत सिग्निफिकेंटली बोन हेल्थ को ऐसे अफेक्ट करते हैं। यस, थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट। क्योंकि जो आपने बताया, फैट सेल्स जब बढ़ता है बॉन फॉर्मिंग सेल्स भी कम हो जाता है, दैट वाज अ न्यू लर्निंग फॉर मी कि बोन्स का सेल भी कम होता है। वी न्यू कि फैट सेल्स बढ़ते हैं, बट वी नेवर न्यू कि बोन फॉर्मिंग सेल्स कम होते हैं, एंड दैट इज स्कैरी। मतलब ओबेसिटी को तो जस्ट मोटापा सोचना नहीं है, दैट इज व्हाट इज द अल्टीमेट थिंग। ओके, सो हमने ये भी डिस्कस किया कि एज के साथ कैसे बोन रिस्क, सॉरी बोन फ्रैक्चर्स का ये बढ़ जाता है, लाइक द चांसेस। ओके, एंड ओके, अगर कोई ओवरवेट है, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, फिर भी अगर कोई ओवरवेट है और अगर वो अपना वेट लॉस करता है इन हेल्दी वे, तो क्या उसका बोन हेल्थ इंप्रूव हो सकता है? डेफिनेटली दिस गोज विदाउट सेइंग कि बॉडी में जो भी अफेक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो वेट से हो, अल्कोहल से हो, स्मोकिंग से हो, ये सारे जो इफेक्ट्स होते हैं ये टू सम एक्सटेंट रिवर्सिबल होते हैं। एंड इनफैक्ट ओबेसिटी का जो इफेक्ट बोन हेल्थ पे होता है ये कम्प्लीटली रिवर्सिबल भी होता है, बट आपको उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। जैसे जो लोग मुझे ये बताते हैं कि हम तो खाते पीते घर से हैं, तो जैसे वो लोग 30 साल से खाते पीते घर से हैं, तो दे हैव टू पुट इन एटलीस्ट 5 to 10 years यस। डेडिकेटेडली, तभी वो एक अपने पहले पहले वाले स्टेटस पे पहुंच पाते हैं। और साथ साथ जैसे जैसे आपका वेट रिड्यूस होगा, साथ साथ ऑटोमेटिकली आपकी बोन हेल्थ भी इम्प्रूव होती जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि एवरीथिंग इन बॉडी इज रिवर्सिबल, आपकी बॉडी हमेशा आपको सपोर्ट करेगी, यस। बट
वो तब करेगी जब आप एक एक्टिव एफर्ट करेंगे अपनी बॉडी का ध्यान रखने के लिए। एब्सोल्युटली। तो ओबीस पीपल के लिए और एक क्वेश्चन है, जो बहुत टाइम हमारे साथ ऐसा केसेस आते हैं कि उन्होंने, वो ओबीस थे, मतलब वो काफी ओवरवेट था उनका, 30-20 kg, एंड उन्होंने वेट लॉस करने के लिए एक्सरसाइज स्टार्ट किया। ओके, एक्सरसाइज इतना ज्यादा कर लिया कि दे एंड अप गेटिंग सम बोन डैमेज, है ना। करके वो आते हैं कि अरे मैं एक्सरसाइज कर रहा था टू लूज वेट, पर मेरा बोन डैमेज हो गया, अब क्या करूं मैं, नाउ आई एम बेड रिटन, और आई कैन नॉट डू एक्सरसाइज बिकॉज मेरा यहाँ मोच आ गया या सम फ्रैक्चर्स हो गए हैं। सो नाउ आपका क्या सजेशन है, जो ओवरवेट है उसको एक्सरसाइज करना चाहिए सडनली, या हाउ हाउ द अप्रोच शुड बी? सो ये दिस ब्रिंग्स मी बैक टू माय प्रीवियस कमेंट दैट एक होलिस्टिक अप्रोच बहुत ज़रूरी है, और आपको कभी भी प्रोफेशनल हेल्प लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट हेजिटेट टू हैव अ प्रोफेशनल हेल्प, क्योंकि अगर आपके पास प्रोफेशनल हेल्प होगी, दे विल ऑलवेज एनकरेज यू टू मेक डाइटरी मॉडिफिकेशंस फर्स्ट। स्टार्ट विद लाइटर एक्सरसाइजेस। पहले आप थोड़ा वॉक कीजिए, आप 2 किलोमीटर यू जस्ट वॉक ऑन द ट्रेडमिल। फिर आप थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, फिर थोड़ा स्लोप बढ़ाइए, इंक्लिनेशन बढ़ाइए, अपहिल चलिए। फिर आप रनिंग पे आइए, पहले आप जॉगिंग पे आइए इनफैक्ट, फिर आप रनिंग पे आइए, और ग्रेजुअली यू इंक्रीज योर स्पीड। जब आपको लगे कि आप एक कार्डियो वर्कआउट पूरी तरह अच्छे से कर पा रहे हैं, तब आप वेट ट्रेनिंग भी साथ साथ स्टार्ट कीजिए विद लाइट वेट्स। तो इस सब में एक प्रोफेशनल गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है, स्पेशली उस ब्रैकेट में जो सिग्निफिकेंटली ओवरवेट है या ओबीज है। उस ब्रैकेट को तो डेफिनेटली एक प्रोफेशनल गाइडेंस लेनी चाहिए, सो दैट दे डोंट एंड अप इन प्रॉब्लम्स लाइक यू सेड कि मैंने तो एकदम से जाके पूरा या जिम हिला दिया और या अब मेरे को इतना बैक एक हो गया है। क्योंकि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप लेट से आप 100 kgs के हैं, तो आपकी बोन्स आपको 100 kg का आपको उठाकर ले जाने की कोशिश कंटिन्यूअसली करनी है, जिस प्रोसेस में उनको उतना न्यूट्रिएंट मिल नहीं रहा है, और वो वीक होती जा रही है। अब आप 100 kgs के जिम में जाके 40 kgs की वेट लिफ्टिंग करने लग गए, तो आपकी बोन्स बहुत ही एक क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाती है। एंड एट इफ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम योर बोन्स और योर मसल्स गिव अप, तो वो आपके लिए एक क्रॉनिक, एक लंबे समय की इंजरी बन जाती है, जो आपको फर्दर डिस्करेज करती है कि ये काम ना करें। तो मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन इसमें ये रहेगा कि आप पहले अपने डाइट पे ध्यान दें, अपने डाइट को मॉडिफाई करने की कोशिश करें, घर पे लाइट वेट से आप ट्रेनिंग करना शुरू करें, एक ब्रिस्क वॉक को टारगेट करें 45 मिनट्स ट्वाइस इन अ डे। या जिसको यंगर एज ग्रुप ब्रिस्क वॉक से जॉगिंग पे जल्दी जाने की कोशिश करें। जब आप ये करते करते कंफर्टेबल हो जाएं और आपको लगे कि या तो आपका वेट, अब जिन लोगों का वेट कंसिस्टेंटली बढ़ता रहता है उनका वेट या तो प्लेटू पड़ जाए, या जिन लोगों का वेट बहुत समय से लेट से 95 था और वो 93, 92, 91 तक आ जाए, तब मुझे लगता है कि यू इंडल्ज इन हैवी यू नो एक्सरसाइजेस। मुझे लगता है दैट इज अ मच मोर रैशनल प्रोटोकॉल अपने आप को बचाते हुए वेट लॉस करने की। यस, एब्सोल्युटली। तो जो वेट लॉस करते हैं, समथिंग आई वाज अबाउट टू टेल, कि हाँ, लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, डेफिनेटली वो अपने हेल्थ के बारे में सोचते हैं। द ओनली थिंग इज, इन इंडिया पीपल टेक अ बैक सीट व्हेन इट कम्स फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर हेल्थ। वो पहले सोचते सबसे शॉर्टकट है, एक्सरसाइज कर लेता हूँ, वट एवर माई बॉडी, जो भी प्रॉब्लम है मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ, एंड दे रैंडमली स्टार्ट। जो हमने देखा है, जो केसेस होता है, चलो नहीं काम हुआ, चलो मैं कुछ एक कर लेता हूँ, मैं अपना खाना वाना बंद कर देता हूँ, थोड़ा एक एक रोटी खा के चलाऊंगा, वहां पर भी गड़बड़ हो जाता है। सो दैट इज और एंड वो करते 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 फिर उन लोग, जो बोन्स जब इफेक्ट हो जाता है, फिर उन लोग नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराते हैं, जहाँ पर वो 3-4 लाख पे करते हैं। सो एट वन गो उन्होंने अपने डैमेज को, बिकॉज वो माइंडसेट नहीं हो रहा है कि मैं हेल्थ पर इन्वेस्ट करूँ, इन्वेस्टमेंट ऑन हेल्थ। बट वी फील कि लोगों को करना चाहिए। इट कैन बी इन्वेस्टमेंट ऑन देयर ब्लड टेस्ट ऑन अ 6 months वाइज, इन्वेस्टमेंट ऑन गुड फूड, क्वालिटी फूड, ऑर्गेनिक फूड। जो मेरे, हमें एज अ हेल्थ कोच हम सभी को बोलते हैं, गुड क्वालिटी फूड पर इन्वेस्ट करना, अपना रेगुलर चेकअप, मतलब अप टू डेट रहना, और कुछ जो आपने बताया एक्सरसाइज उसके बाद आता है। सो बेस्ट क्वालिटी ऑफ हेल्थ में जो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो या दैट्स व्हाट आई आल्सो वांटेड टू ऐड इन टर्म्स ऑफ दैट, कि हमने ये देखा है कि लोग इन्वेस्ट करने से डरते हैं, कि इन्वेस्ट कैसे कर दे हम हेल्थ के लिए, कुछ हुआ ही तो नहीं है, बस वेट ही तो बड़ा है, काइंड ऑफ डील। इसमें मतलब आई थिंक इसमें मेरा ओपिनियन ये है कि जैसे some years back, very commonly people used to say health is wealth, health is wealth. बट आज आपके पास में ऑप्शन है कि आप उस वेल्थ से अपनी हेल्थ को भी वापस ले पाए,
एंड इट इज हाई टाइम दैट यू कैपिटलाइज ऑन दैट, क्योंकि आज तो आपके पास में ऑप्शन है कि आप वेल्थ से हेल्थ को वापस रीगेन कर पाए, बट जब इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आने लग जाएंगे बॉडी में, चाहे वो बोन हेल्थ हो, चाहे वो डेवलपमेंट ऑफ समथिंग एज एक्सट्रीम एज कैंसर हो, ये हर चीज में कंट्रीब्यूट करता है। तो आपको कहीं ना कहीं एक झटके में वो आपका सारा वेल्थ आपको देना पड़ेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अभी से थोड़ा इन्वेस्टमेंट अपने हेल्थ पे करना शुरू करें, बिकॉज इट इज डेफिनेटली डेफिनेटली गोइंग टू लास्ट अ लॉन्ग वे। दिस इज गोइंग टू बी द probably one of the best kind of investments जो एक फाइनेंशियल कोच आपको नहीं सिखा सकता। Absolutely. Anyway, doctor, so I think we have almost come to the end of all the queries, whatever we got from our people, our audience, है ना? So I think it was great value add. बहुत कुछ सीखा मैंने खुद से, and I think one of the best podcast we had today, doctor, and it's because of थैंक यू, थैंक यू। thank you for taking your time out. You know, I know with the busy schedule and so many things you are already doing, and with Yes, that you have given this 45 minutes to 1 hour for us, and we are a very small community regarding health, but still apne time nikala, and our whole goal is to help people be aware to take care of their health, and be healthy and fit, क्योंकि इसी से हम सारी खुशियां शायद अपने लाइफ में फील है, वो हैप्पीनेस के साथ ही हम एंजॉय कर पाएंगे विद अ गुड हेल्थ। तो वही है हमारा अल्टीमेट गोल। तो yes, आप yes। अपने तरफ से कुछ मैसेज देना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को? यस, सो माय मैसेज वुड बी लाइक, जैसे आपने कहा कि एक छोटी कम्युनिटी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कम्युनिटी छोटी नहीं होती है, बिकॉज अगर आपकी कम्युनिटी में आपके पास में 5 लोग भी हैं, तो वो 5 लोग अगर हमारी बात को समझेंगे, तो वो अपने घर में 5-5 लोगों को और समझाएंगे। यस। So, every person who gets educated through this or any other podcast or any other education initiative that all the people related to health are doing, अगर वो खुद ये बातें समझकर और 5 लोगों को और समझाएगा, तो मुझे लगता है कि कोई कम्युनिटी छोटी नहीं होगी। एंड इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम जब इंडिया में भी everyone will understand it very well that health comes first. Health comes before everything and anything that you have ever wanted and that you will ever have. यस, ट्रू, And एब्सोल्युटली। before we end, I had a lot of questions from my family and friends as well, which यस, I believe now we'll post it on this reel itself, which will be live on your channel and as my channel as well. यस, And then we'll answer it over comments. And you can also pour in your queries which have not been answered on the comment section so that we can go through them and give us some time to get back to you. But we'll get back to all of you. या। Thank you so much for this. Thank you so much, Dr. Tushar, and thanks for being here today. And thank you everyone for watching us today. I hope this podcast helped you. And डॉक्टर तुषार का मैं आपको इंस्टा हैंडल के बारे में डिटेल्स दे दूंगी, और डेफिनेटली ये लाइव इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों में आप देख सकते हैं फिर से अगर आप देखना चाहे। सो ओके देन एवरीवन, बाय बाय, बाय डॉक्टर तुषार। Thank you. थैंक यू। Bye. Thank you.